بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ششم کے سبق کی خاطرے کے ساتھ ہم موجود ہیں اور آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ترقی کا راز۔ جی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 86 پر موجود ترقی کا راز۔ اس سبق کے ذریعے ہم آپ کو ایک زرعی فارم کی سیر کرائیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سبق میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ کلاس روم میں استاد داخل ہوئے تو سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بتایا کہ آج وہ کلاس کو پاکستان کی زرعی ترقی کا حال بتائیں گے۔ تمام بچے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے پوری کلاس پر بھرپور نظر ڈالی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے یہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا اور فصلوں کا معیار و مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی۔ دن بدن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نت نئے آلات، جدید طریقوں، بیجوں، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے ذریعے زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اسی طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا۔ مثلا ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کیا کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ استاد نے تفصیل سے یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کروائی جائے۔ استاد نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی اور قریبی زرعی فارم کے مینیجر کو موبائل سے فون کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کے مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ زرعی فارم کے مینیجر نے بخوشی اجازت دے دی اور زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلبہ اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر نے کئی منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت سے لے کر کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلبہ کو فارم ہاؤس میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑوں کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے، لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹن کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کروایا۔ بچوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزی دکھائی گئی جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
इन्हें मालूम हुआ कि कीमियाई खाद, पानी की फराहमी, दर्जा हरारत के कंट्रोल और साइंसी आलात के इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्जी को उगाया जा सकता है। बच्चे नए आलात और जदीद तरीक़ाकार को देखकर महफूज हुए। फार्म में ज़राअत कारों के दरमियान खासी देर रहकर उन्होंने इंसानों की जगह मशीनों को काम करते देखा और उनके तरीकों से आगाही हासिल की। वो इतने खुश थे कि उन्होंने वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। अब वो थक चुके थे, लिहाजा वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैनेजर ने बच्चों को खाने के लिए लंच बॉक्स दिए। मज़ेदार खाना खाने के बाद वो खुशी खुशी घर वापस आ गए। जी, मजा आया आप लोगों को भी फार्म हाउस की सैर करके? नहीं आया? आप चलना चाहेंगे तो दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम इस वबाई मर्ज कोरोना के चुंगल से निकले जल्द से जल्द, तो आपके भी मुतालती दौरे हम जरूर करवाएंगे। तो आइए चलते हैं अल्फाज मायने की तरफ। ये अल्फाज मायने पहले हम देख लें। तमहीद यानी इब्तिदा। किसी बात को शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा हम तमहीद बांधते हैं, इब्तिदा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको तमहीद कहते हैं। गामजन कदम बढ़ाना। गाम माने होता है कदम और गामजन से मुराद यहाँ पे बढ़ाना। ठीक है। ज़रई खेती बाड़ी वाली किसी भी चीज़ को ज़रई के हवाले से नाम दिया जाता है, यानी ज़राअत से मुताल्लिक। जरासीम कुछ जरासीम मारने वाली। अदम दस्तयाबी किसी चीज़ का ना मिलना। मॉडल माने नमूना। मुआवन मददगार को कहते हैं। शुजदा रह जाना, हैरान रह जाना। जदीद तरीक़ाकार, काम के नए नए तरीके। तहवील हवाले करना या अपने पास किसी चीज़ को रख लेना। अजनास है जिन्स की जमा, जिसका मतलब है अनाज। सैलाब ज़मीन को पानी देना, यानी प्याज बुझाना ज़मीन को, उसको पानी देना। बुआई यानी बीज को बोना। बोना से लफ्ज़ निकला, फेलिया जुमला लफ्ज़ निकला बुआई। ठीक है। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, इस पूरी सैर में जो बच्चों ने की, उन्होंने अपनी आंखों देखा, हाल देखा कि वो काम जो इसको मिलकर पहले 10 लोग, 10 किसान या 10 मजदूर किया करते थे, मशीनों के आने से क्या हुआ, उन कामों में आसानी पैदा हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मईशत का जो हिस्सा है वो ज़राअत है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान का 80% में मईशत का हिसार जो है वो ज़राअत पे है। उसके बाद सनत। सनत किसको कहते हैं बेटा? ये जो मिल कारखाने होते हैं, चीज़ें बनती हैं मुख्तलिफ, वो सनत होती है। सनत से मुराद सनाई करना, बनाना। ठीक है, मसनूई चीज़ें बनाना। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि शहरों में ज़्यादातर सनती कारोबार चलता है और देहात में ज़्यादातर ज़रई काम चलता है। तो ये दोनों काम मिलकर एक मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। जमात शिशुओं के बच्चे थे, मास्टर साहब ने उनको जब ये हवाला दिया और बताया कि हमारे मुल्क में ज़रई तरक्की का राज क्या है और हम अब आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने इस बात का इज़हार किया कि हम एक ज़रई फार्म हाउस देखना जाना चाहते हैं। अब मास्टर साहब उनको जिस तरह भी लेके जाते हैं, राब्ते करते हैं मैनेजर से, और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो अपने अमल में तेज़ी से मसरूफ़ है, वो काम मिसाल के तौर पे कि बीज बोना है, पहले किसान ज़मीन खोदता था और बीज डालता था। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वही काम बहुत सारे किसान मिलकर बीज फैलाया करते थे। अब मशीनों के ज़रिए क्या उसमें आसानी हो गई कि एक मशीन ज़मीन को खोदती हुई, नरम करती हुई चलती है और उसी मशीन के पीछे से बीज बोए चले बोए यानी डाल दिए जाते हैं, बीज बो दिए जाते हैं और उसके बाद ज़मीन को बराबर कर दिया जाता है। अब जहाँ पर एक छोटे से हिस्से में मट्टी के 10 लोग मिलकर काम करते थे, वहाँ एक मशीन थोड़ी सी देर में वो काम निपटा देती है। फिर इसी तरह यहाँ उन्होंने नाम लिया हार्वेस्टर मशीन। ये क्या है? कटाई। आपने देखा होगा, अक्सर ड्रामों में देखा होगा आपने कि किसान में जो है खेत में काम कर रहे हैं और फसलों को काट रहे हैं, है ना, फिर उसके गट्ठे बना रहे हैं, फिर उनको लेके जा रहे हैं। कितना मेहनत का काम है, मतलब मौसम का ख्याल नहीं रखता किसान और ये काम करता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो बहुत तेज़ी से उन फसलों का काम, जो कटाई का काम है, वो कर देती हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस तरह इंसान ने तरक्की की, अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। पहले हम क्या करते थे, बिजली का इंतज़ाम नहीं था तो लोग मोमबत्ती में, चराग में, लॉलटेन में, इस तरह की चीज़ों में रोशनी का इंतज़ाम करके काम करते थे। फिर जब आपने देखा बिजली आ गई
आपने तो क्या देखा, आप तो माशाल्लाह से जिस नस्ल में पैदा हुए, जो नस्ल है आपकी, आपको बिजली मिली है ना, तो बिजली से आपके काम कितने आसान है। बिल्कुल यही मिसाल ज़रूरी हमारे पैदावार की है कि अगर हम अपने सिलबट्टे पे कोई मसाला पीस रहे हों घर में, बजाय उसके हम उठा के उसको जूसर, ब्लेंडर या जो भी चॉपर होता है आपका पीसेंगे, उस पर पीसेंगे तो वो काम जो हमारा कई मिनट लगा रहा है वो लम्हों में हमें काम हमारे हाथ में आ जाता है। यानी इंसान की जो कुव्वत है, इंसान की जो कारकर्दगी है, उसको मशीनों के जरिए उस इस्तेमाल को, उस वक्त को मौजूदा दौर में जदीद तरक्की ने बढ़ा दिया। यही हमारी तरक्की का राज है। अगर हम पुराने तरीकों के जरिए ही काश्त करते रहें और जदीद वक्त के साथ अपने आप को ना ढालेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। यहाँ ये मकसद है आपको बताने का कि जो नित नई इजादात होती हैं, नित नई आपके आसानी के लिए चीज़ें आती हैं, उनको मुफीद कामों में लगाइए और अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, ज़री पैदावार को, सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए जो हमें जदीद दुनिया के तकाजे हैं उनके साथ चलने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ की किसी सनती बिल्डिंग का या फैक्ट्री का किसी का जायज़ा लेंगे तो आप देखिएगा कि पहले अगर कोई चीज़ हाथ से काटी जाती थी, मिसाल के तौर पे आप कपड़ा ले लीजिए, तो आजकल उन कपड़ों को काटने के लिए भी ऐसी जदीद मशीनें आ गई हैं कि सिर्फ एक कपड़े को नहीं काटता टेलर, तो एक कपड़े को काटता है। वो मशीनें एक बहुत बड़े, कहना चाहिए ढेर को या पलंदे को बहुत आसानी से ऐसे काट देती हैं, जैसे आप छुरी में गरम मक्खन में गरम छुरी को फेरते हैं तो कितनी तेजी से छुरी जो है मक्खन को काटती है, बिल्कुल इसी तरह ये मशीनें काम करती हैं। ठीक है, तो इंसान ने तरक्की की तो उसकी तरक्की का राज यही है कि उसने पहले अपने लिए आसानियाँ पैदा की और इन आसानियों को पैदा करके आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये सब कैसे हुआ, अमल में आया? तो बेटा ये अल्लाह पाक का जो एक सिफत है, अल्लाह पाक की तख्लीक करने की सलाहियत, वो अल्लाह ताला ने इंसान को दी और इंसान ने सोच समझ और शऊर के साथ अपनी आसानी के लिए बहुत सी तख्लीकात को वजूद में लेकर आए। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मशीनें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, जदीद सहूलियात हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लिहाजा हमें इनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और आपको ये सबक पढ़ाने का मकसद ये भी है कि बेटे कि एक शोबाजात हैं, सनत के, ज़राअत के, तिब के, हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनता। अगर आप चाहें तो अपनी फील्ड में, अपने शोबे में इन जगहों पर भी जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि फिर बात क्या आती है कि हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार सनत व हिरफत और ज़राअत के पेशे पर है। ठीक है बेटा, आपको आपके सबक के तमाम मश्की सवालात करने हैं और हम थोड़ा सा आपको अभी कवायद का काम भी करवाने जा रहे हैं, तो अपनी कॉपी और पेन संभाल लीजिए और आइए देखिए हम क्या करवाते हैं। तो बेटा हमारे पास चंद अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और वाहिद जमा है। तो आइए ये काम भी हम करते चलते हैं। उतार, चढ़ाओ, वसी, तंग। उतार का मतलब उतरना और चढ़ाओ का मतलब या चढ़ाई का मतलब चढ़ना। वसी माने बहुत ज्यादा, कुशादा, और तंग माने कम जगह। सफाई, गंदगी, कुबूर, इनकार, मानना किसी चीज को और किसी चीज को ना मानना। दाना माने अक्लमंद और बेवकूफ। बेवकूफ या ना समझ भी लिख सकते हैं आप। ना समझ, ठीक है। अब आइए अल्फाज मुतरादिफ। अभी हमने किया अल्फाज मुतज़ाद, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ मायने रखते हैं। अल्फाज मुतरादिफ क्या है? एक ही मायने लेकिन अल्फाज अलग अलग, जैसे अचानक, यकायक, खोज, खोज यानी ढूंढना, इसका मुतरादिफ तलाश, हयात, जिंदगी।
हिफाजत, सलामत, समर, हल, दर, दरवाजा या चौखट भी कह सकते हैं। नगमा, गीत, बहर, समंदर। सुनते हैं ना बहरे अरब या बहरे ओकेयानूस, तो बहर समंदर। उस्ताद, मुअल्लिम, मुअल्लिम, आतिश, आग। ये हमारे अल्फाज मुतरादिफ। अब आइए वाहिद जमा। खबर, अखबार, मुहाजिर, मुहाजिरीन, कमाल, कमालात, मर्तबा, मरातिब, हाजत, हाजात। ठीक है बेटा, एक दफा मैं सब आपके लिए पढ़ देती हूँ। सबसे पहले हम अल्फाज हिफ्ज़ात की तरफ आते हैं। उतार चढ़ाओ, वसी तंग, सफाई गंदगी, कुबूल इनकार, दाना बेवकूफ या समझ, अल्फाज मुतरादिफ अचानक यकायक, खोज तलाश, हयात जिंदगी, हिफाजत सलामत, समर फल, दर दरवाजा या चौखट, नगमा गीत, बहर समंदर, उस्ताद मुअल्लिम, आतिश आग। अब आइए वाहिद जमा। खबर, अखबार, मुहाजिर, मुहाजिरीन, कमाल, कमालात, मर्तबा, मरातिब, हाजत, हाजात। तो ये हमारा थोड़ा सा ग्रामर का काम था। हमने सबक तरक्की का राज पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जमात शशुम के तलबा ने वहाँ जाके वो कैसे महजूज हुए। महजूज होने का मतलब ये होता है किसी चीज़ से लुत्फ उठाना। आप जब एक रूटीन वर्क कर रहे होते हैं, एक रोज़मर्रा के मामलात में आप चल रहे होते हैं, अगर वहाँ से हटकर किसी जगह पर जाकर मालूमाती ही दौरा कर रहे हो, मुतालाती ही दौरा कर रहे हो, तो आपको फिर उस पढ़ाई में मज़ीद मज़ा आता है। जैसे हम क्लासेस में पढ़ रहे थे, अब हम ऑनलाइन स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको मज़ा आ रहा है ना? जी बेटा, ये तमाम काम हम अपनी कॉपी में करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप कॉपी ला के चेक करवाइए, और फिर इंशाल्लाह ताला नए सबक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।